ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تمہارا نکاح مکرم کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے۔ بار بار اس کے کانوں میں یہ فکرہ گونج رہا تھا اور اس کا غصے اور غم سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی اور اس بات کا اسے اچھی طرح سے احساس تھا۔ 12 جماعتیں اچھے نمبروں سے پڑھنے کے بعد اس کا بہت اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا اور ہاسٹل جانے سے پہلے اچانک ابا کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے بھتیجے مکرم کے ساتھ اس کے نکاح کی بات کر دی۔ اس سے پوچھا تک نہیں تھا بلکہ بس بتایا تھا، اور تب سے اس کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ اسے مکرم شروع سے ہی بہت زہر لگتا تھا اور کسی بھی صورت وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ محض 4 برس کی تھی جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے بابا ہی اس کی کل دنیا تھے، مگر ان کا یہ فیصلہ اسے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ گو کہ انہوں نے اس کی آج تک ہر خواہش پوری کی تھی، لیکن یہ اس کے لیے ضبط سے بڑھ کر تھا۔ مکرم ان دنوں وہاں پر ہی آیا ہوا تھا، اس وجہ سے بھی اس کا وہاں سے نکلنا محال تھا۔ اس نے ٹیرس سے جھانک کر دیکھا تو مکرم کی گاڑی وہاں پر کھڑی نہیں تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی لاؤنج میں چلی گئی جہاں بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ وہاں پر آئی تو ان سے بات کرنی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ خود مصیبت کو گلے لگانے جا رہی ہے۔ کیا ہو گیا ثانیہ؟ بیٹا خیریت ہے نا؟ یوں بھاگی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ بابا نے اس کے عقب میں جھانکتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کتنے ہی شکوے اتر آئے۔ بابا، میں مکرم بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے کمزور لہجے میں کہا تو شفیق صاحب نے انگلیوں سے اپنا ماتھا مسلا۔ لیکن بیٹا مکرم میں کیا برائی ہے؟ انہوں نے ابرو اچکاتے ہوئے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ کیونکہ میں نے ہمیشہ ان کو اپنا بھائی سمجھا ہے اور اب میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اپنے باپ کا دل دکھانا بھی اس کے لیے مشکل بات تھی، اسی لیے اس نے یہ بہانہ بنایا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، شادی سے پہلے انسان یوں ہی بہت سے رشتے وابستہ کرتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بابا نے اس کی بات کو چندہ اہمیت نہ دی تو اسے بہت برا لگا۔ گہری سانس لے کر اس نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بابا دیکھیں، وہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ بالکل پسند نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے سیاست دانوں سے کتنی نفرت ہے۔ اس کے لہجے میں مکرم کے لیے واضح نفرت تھی۔ مکرم ایک جانا مانا سیاست دان تھا اور وہ اس کے تمام تعلقات اور مکاریوں سے اچھی طرح واقف تھی، کیونکہ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور تھا اور اسے فیس بک پر جگہ جگہ سے اپڈیٹ ملتی رہتی تھی، تو اس وجہ سے اسے مکرم سے شدید نفرت تھی۔ مکرم جو تیزی سے لاؤنج میں آنے لگا تھا وہ دروازے کے پاس ہی رک گیا، کیونکہ وہ ان دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ کان اندر سے آتی ہوئی آوازوں کی طرف لگائے۔ دیکھو، اسے دوسروں کے ساتھ یہ سخت رویہ اپنانا پڑتا ہے، مگر تمہیں وہ اس گھر میں بہت خوش رکھے گا۔ بابا نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ بابا، یہ سیاست دان کسی کے نہیں ہوتے۔ وہ غصے سے بول رہی تھی تو لہجے میں مکرم کے لیے بہت نفرت بھی تھی۔ دیکھو، میں تمہارا باپ ہوں اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، بلکہ میں نے مکرم کو زبان بھی دے دی ہے۔ چند دن بعد بھابھی اور بچیاں آئیں گی تو تمہارا خاموشی کے ساتھ نکاح اور رخصتی کر دیں گے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا جو اس کی زندگی کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس سے پوچھا تک نہیں تھا۔ اس نے تو ڈگری بھی اپنی مرضی سے لی تھی، تو جیون ساتھی کیسے وہ کسی اور کی مرضی کا چن سکتی تھی؟ رونے دھونے سے مسئلے کا حل نہیں نکلنا تھا، اسے اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر ان سب کا مقابلہ کرنا تھا۔ سو اس نے گہری سانس لی، 2 قدم ان کی جانب بڑھائے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اگر آپ نے میری شادی مکرم بھائی سے کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ شفیق صاحب حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کی بیٹی تو نہیں تھی۔
दरवाजे के पीछे खड़ा मुकर्रम उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसके हाथ की मुट्ठियां भींच गई थी। आज तक उसे किसी लड़की ने रिजेक्ट करने के मुतालिक सोचा तक नहीं था, और ये लड़की इस कदर दीदा दलेरी के साथ ये सब कुछ कह रही थी। बाबा ने बहुत दुख से इसे देखा था, क्योंकि ये मासूम सी लड़की नहीं जानती थी कि उसके बाप का अब इस पर कोई इख्तियार नहीं रहा था। उन्होंने सिर्फ इसलिए उसे मुकर्रम के साथ ब्याहने का सोच लिया था क्योंकि मुकर्रम उनका बहुत बड़ा सच जानता था। वो नहीं चाहते थे कि मुकर्रम उस सच के मुतालिक उनकी बेटी को बताए और वो मुकम्मल तौर पर टूट जाए, तो इसीलिए उन्होंने उसके साथ शादी का फैसला कर दिया था। मुकर्रम के पास जो सबूत था उसके मुताबिक सानिया पर उनका किसी किस्म का कोई हक बाकी नहीं रहा था। चंद लम्हे उन दोनों के दरमियान गहरी खामोशी रही और फिर वो भाग कर वहां से चली गई और वो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गए। कितनी ही देर वो वहां पर बैठे रहे और सोचों के गहरे भंवर से उस टाइम निकले जब मुकर्रम लाउंज में आया। उन्होंने चौंक कर इसे देखा। तायाबा, अपनी बेटी से कह दीजिए कि उसका मेरे साथ निकाह है तो वो किसी किस्म का कोई हंगामा यहाँ पर मत करे, क्योंकि मैं गवाह और मौलवी ले आया हूँ। तो याद रखिएगा, अगर उसने किसी किस्म का कोई हंगामा करने की कोशिश की तो उसे जान से मार दूंगा। उन्होंने बेयकीनी से अपने सफाक भतीजे की जानिब देखा, जो यहाँ पर आकर फैसले पर फैसले कर रहा था और उनको हर बार पहले से ज्यादा हैरान कर रहा था। यहाँ खड़े होकर मेरी सूरत मत देखें। आपको मालूम है कि मैं जो कहता हूँ वो करने का आदी हूँ, तो बेहतर है कि जाकर अपनी बेटी से कहिए कि वो चादर ओढ़कर नीचे आ जाए। उसने इंतहाई सफाकी से कहते हुए उनकी रही सही हिम्मत भी छीन ली थी, लेकिन उसके पीछे मौलवी और कुछ गवाहान को देखकर उन्हें इस वक्त खामोशी को ही मसलहत बनाना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका ये भतीजा किसी की इज्जत का ख्याल बिल्कुल नहीं करता। वो बहुत जल्द कदमों के साथ वहां से चले गए तो उसने मौलवी साहब और दूसरे गवाहान को बैठने का इशारा कर दिया। इसे मालूम था कि ताया जान इसे मायूस नहीं करेंगे। वो सियासतदान था, सो अच्छी तरह से दूसरों की कमजोरियों का इस्तेमाल करना जानता था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो सर पर चादर लिए नीचे आ गई और जिस तरह तायाबा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था तो उससे मालूम हो रहा था कि उसे जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया था और उसकी रजामंदी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी, मगर वो बहुत सरशार नजर आ रहा था। दिली रजामंदी से निकाह करना, वरना ये निकाह नहीं होगा, और तुम्हें पता इससे फर्क तुम्हें ही पड़ेगा कि दुनिया की नज़रों में ये निकाह हो जाएगा और तुम मेरी बीवी बन जाओगी। जैसे ही वो इसके पास आके बैठा तो पहला जुमला यही इसके कान में कहा, और सानिया का बस नहीं चल रहा था कि इस दरिंदे का वो चेहरा नोच ले जिसने उसके ख्वाबों से भरी आंखों को नोच डाला था। थोड़ी ही देर में निकाह हो गया। ओह माजरत, मैं तो मिठाई लाना भूल गया। चलिए अगले हफ्ते मेरी रुखसती है तो तब खिला दूंगा। उसकी इस बात पर शफीक साहब ने एक बार फिर उसे दुख से देखा कि वो ये फैसला भी खुद कर चुका था, जबकि सानिया का बस नहीं चल रहा था कि वो इसे मार दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे डरती भी बहुत थी, सो वो कोई ऐसी हिम्मत करने का हौसला नहीं रखती थी। मिसेस मुकर्रम हुसैन शाह की जिंदगी में खुश आमदीद कहा जा रहा है आपको, वो काफी रोमानवी अंदाज में कह रहा था। ये क्या है बाबा? वो दुख से अपने बाप को देखते हुए पूछ रही थी। इनसे कुछ मत पूछो, सारा फैसला मैंने किया है, मुकर्रम ने उसकी जानिब देखते हुए इत्मीनान से कहा। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला करने वाले? वो एकदम ही आपसे तुम पर आ चुकी थी। उसकी आंखों से मुकर्रम के लिए नफरत ही नफरत छलक रही थी। तुम्हारा शौहर, अगले हफ्ते रुखसती है तो तैयारी कर लेना। किसी किस्म की कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए मैं यहाँ अपने बंदे छोड़ रहा हूँ। तो याद रखना, तुमने अगर किसी किस्म की चालाकी मेरे साथ की तो उसका खमियाजा तुम्हारे बाबा को भुगतना पड़ेगा।
تو مائی ڈیئر وائف، مجھے امید ہے کہ تم اپنے بابا کے ساتھ ایک لمبی زندگی گزارنا چاہتی ہوگی۔ تمہارے میکے میں آخری ہفتہ ہے، تو جی بھر کے گزار لو۔ میں تم لوگوں کی زندگیوں میں دخل نہیں دوں گا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ تایا ابا کے آگے جھکا اور سلام کیا، پھر سن گلاسز لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ یہ کیا ہے بابا؟ وہ دکھ سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کا تمہارے ساتھ ابھی نکاح نہ کروایا تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ ایسا کر دے گا۔ تمہارا باپ بہت کمزور ہو گیا ہے، اسے معاف کر دو میری بیٹی۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ کمزور لہجے میں کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو تھاما۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا باپ مجبور تھا، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اسے ناکوں چنے چبوا کر رکھ دے گی۔ اس نے جیسے اسے اور اس کے باپ کو مجبور کیا تھا، تو یہ تہیہ اس نے بھی کر لیا تھا کہ وہ چین سے اسے بھی نہیں جینے دے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کس طرح اسے توڑ دے گا۔ یہ بات اس کو اچھی طرح معلوم تھی کہ اس نے واقعی اس پر نظر رکھی ہوگی، تو اس وجہ سے وہ کوئی ایسی سرگرمی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ واقعی اس کے بابا کو نقصان پہنچائے یا ایسی کوئی کوشش کرے۔ شادی کی تیاری کرنے کا اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی کی تھی۔ تائی امی اور اس کی کزنز وہاں پر آئی تھیں، بات وغیرہ طے ہو گئی تھی۔ ان کا لاہور میں ایک گھر تھا تو وہ لوگ وہاں پر رہائش پذیر تھے، جبکہ ان کا اصل گھر اسلام آباد میں تھا، جہاں پر وہ لوگ کافی سالوں سے آباد تھے، جب سے مکرم نے سیاست کی میدان میں پاؤں جمائے تھے۔ وہ لوگ اس کو شاپنگ پر لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ مکرم نے بھی اسے کسی قسم کا روک تلے لانے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید وہ اپنے کاموں میں بہت مصروف تھا۔ مہندی ان دونوں کی اکٹھے ہی ہونی تھی، سو وہ دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور اس نے بھی کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مکرم کو کسی بھی قسم کا شک ہونے پائے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اپنی مہندی والے روز وہ ٹوٹ کر روئی تھی کہ کیسے اس شخص نے اس کے تمام خوابوں کو چھین لیا تھا۔ ابھی تو وہ محض 18 برس کی تھی، جبکہ وہ 29 سال کا تھا، اس سے 11 برس بڑا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بابا نے اسے تسلی دینے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس وقت وہ بس جی بھر کر رونا چاہتی تھی۔ اپنی ہار کو تسلیم کرنا بڑے اذیت کی بات ہوتی ہے۔ بارات والے دن وہ دلہن بنی نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی کہ مکرم نے ایک پل کو اسے دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن آج تو وہ قیامت ہی ڈھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے 1 سال پہلے اسے پروپوز کیا تھا تو ثانیہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اسی ریجیکشن کو وہ دل پر لے گیا تھا۔ زبردستی اسے اپنی دلہن بنا کر وہ جیسے خود کو فاتح سمجھ رہا تھا۔ رخصتی وغیرہ کا مرحلہ آیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ زندگی بہت بری لگ رہی تھی، لیکن اس نے بھی سوچا کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گی، ایسی جگہ مارے گی کہ جہاں وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ اس کے لیے ایسا سوال بننے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جس کا جواب وہ ساری زندگی نہیں دے سکے گا، بلکہ شاید وہ سوال اس کی جان ہی لے لے گا اور اس سے سب کچھ چھین لے گا، وہ طاقت بھی جو اس نے اسے دکھائی تھی۔ رخصت ہو کر وہ اسلام آباد آ گئی۔ کبھی اسے اسلام آباد آنے کا بہت شوق ہوتا تھا، لیکن آج جیسے دل مر گیا تھا۔ تھوڑی بہت رسموں کے بعد جب اسے کمرے میں لایا گیا تو اس نے گہری سانس لی۔ کمرہ کافی خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہوا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول لگے ہوئے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ مکرم کو پھول کس قدر پسند تھے، اسی لیے تو اس نے اس شہر کا انتخاب کیا تھا۔ تمہاری زندگی کانٹا بننے والی ہے مکرم حسین شاہ۔ ثانیہ شاہ تمہیں ایک ایسی جگہ مارے گی کہ تم سانس بھی نہیں لے پاؤ گے۔
उसने अपनी नंदों से थोड़ी देर तन्हा बैठने की इजाज़त चाही तो वो लोग वहाँ से उठकर चली गईं। अपनी आंखों को रगड़ते हुए उसने आंसू को जैसे वही तकलीफ देना चाही जिससे वो इस लम्हे गुजर रही थी। फिर उसने अपने बैग में से कुछ तलाश करने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में वो कामयाब हो गई। उसके हाथ में जहर की शीशी थी जो उसने कल ही खरीदा था। वो मरकर मुकर्रम के लिए सवालिया निशान बनना चाहती थी कि आखिर उसकी बीवी को हुआ क्या था। मुकर्रम के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर यही था कि वो मौत को गले लगा लेती, और ये वो सोच चुकी थी। थोड़ी सी देर में उसने सारा कमरा खराब कर दिया, तमाम फूलों को ज़मीन पर फेंक दिया, और फिर जैसे ही अपनी हथेली पर उन गोलियों को रखा तो दरवाज़ा खुला, और वो जो कमरे में फाते बन के दाखिल हो रहा था, जब सामने सानिया को यूं देखा तो उसके होश उड़ गए और वो एक ही जस्त में भागकर उस तक आया। वो जो चंद गोलियां मुंह में ले चुकी थी तो उसने अपना हाथ उसके मुंह में डालकर उनको निकालने की कोशिश की, और वो इस कोशिश में पता नहीं कामयाब हुआ था या नहीं, लेकिन वो बहुत घबरा गया था। फौरन ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और अपनी दुल्हन को गाड़ी में डालकर वो अस्पताल ले गया। वहाँ पर फौरन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डॉक्टर इस बात पर जिद कर रहे थे कि ये पुलिस केस है, तो उसने अपने कुछ जाने वालों को वहाँ पर बुला लिया था, मगर बहुत परेशान था कि अगर इसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। परेशानी से उसका बुरा हाल था, लेकिन थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने आकर बताया कि अभी एक ही गोली उसके अंदर गई थी, तो किसी किस्म का भी रिएक्शन होने से पहले ही हमने उसको निकाल दिया है, तो इस वजह से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सुनकर उसने शुक्र का कलमा पढ़ा। क्या हम इसे घर लेकर जा सकते हैं? उसने अबरू उचकाते हुए डॉक्टर की जानिब देखा। जी बिल्कुल, वो मुकम्मल तौर पर ठीक है, आप लेकर जा सकते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर इजाज़त दी तो उसके सेक्रेटरी ने बाकी तकल्लुफ़ात को निभाया और वो उसे लेकर गाड़ी में आ गया। काश रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए और हम दोनों मर जाएं। वो बस इतना ही सोच सकी थी, क्योंकि इसे मालूम था कि अब वो उसकी कैद में आ गई थी, तो रिहाई इतनी जल्दी उसे नहीं मिल सकती। ज़रा ज़रा सी बात पर उसे रोना आ रहा था, मगर वो मुकर्रम के सामने रोना नहीं चाहती थी। वो इसे लेकर घर पर आया तो माँ और उसकी बहनें काफ़ी परेशान थीं, पर कुछ मेहमान भी सवालिया नज़रों से इन लोगों को देख रहे थे, तो मुकर्रम का दिल चाहा कि इस लड़की का मुंह तोड़ दे। कुछ नहीं हुआ, फूड पॉइजनिंग हो गई थी शायद। खाना खाने के बाद लंबा सफ़र किया तो इस वजह से ये हुआ। उनको जवाब देकर वो उसका हाथ थामकर कमरे में आ गया और गुस्से से झटका देकर उसे बेड पर फेंका। जब वो लेकर गया था तो वो दुल्हन वाले लिबास में थी, सो अभी तक वो इसी लिबास में थी और इसे जहर लग रही थी। क्यों किया तुमने ये? उसने एक टांग दोहरी करके बेड के ऊपर रखी और इसका मुंह अपने हाथों में जकड़ते हुए खून आशाम नजरों से देखते हुए पूछा। क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है, मुकर्रम हुसैन शाह। इतनी दीदा दलेरी की उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो तो पल भर को दंग रह गया, फिर एकदम ही इसका हाथ थामा और झटके से खड़ा किया और खुद भी खड़ा हो गया। इससे पहले कि इस सारी सिचुएशन को समझ पाती तो मुकर्रम शाह ने उसे पूरी कुव्वत से थप्पड़ दे मारा कि वो दोबारा बेड पर जा गिरी। सानिया मुकर्रम शाह, आइंदा अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की या ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किसी किस्म का लिहाज और मुरवत नहीं रखता। एक हफ्ता पहले बनी बीवी और चंद घंटे पहले बनी दुल्हन का भी नहीं। उसकी आंखों में घूरते हुए वो सफाकी की तमाम हदों को अबूर कर गया और लाल गाल के साथ वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में गम या गुस्सा कुछ भी नहीं था, बस बेयकीनी थी कि जैसे उसे यकीन नहीं आया कि उसने एक दिन का होने का लिहाज भी नहीं किया। जाओ, जाकर चेंज करो और वापस आओ, तहकुम भरे लहजे में कहा तो वो डर गई थी, सो तेजी से वहां से चली गई।
उसके जाने के बाद उसने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर उसे जोर से बंद कर लिया। वो ये कम से कम आज नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी के मुंह से अपने लिए ऐसे अल्फाज उसका ज़ब्त आजमा गए। काफ़ी देर तक जब वो वापस ना आई तो वो समझ गया कि वो वहाँ पर बैठी रो रही है, तो जाकर ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खटखटाया। जल्दी से बाहर आओ, वरना एक लम्हा लगेगा मुझे दरवाज़ा तोड़ने में, उसने धमकी और गुस्से की आमेजिश के लहजे में कहा। तो चंद ही लम्हों के बाद वो वाकई बाहर आ गई। हल्के नीले रंग के लिबास में वो आंखों को अच्छी लगी। वो बेड के दाएं तरफ बैठी तो वो भी उसके साथ दूसरी तरफ आकर बैठ गया। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इस बात पर पछतावा है। तुम मेरी बीवी हो, और कोई बीवी ये बात कहे तो शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकते। चंद दिन की बात है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद से मोहब्बत करवाना जानता हूं। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे पर हाथ रखा तो सानिया ने आंखें मींच लीं। उसकी बात सच थी कि वो उसका हाथ झटकने का हौसला नहीं रखती थी, सो अपने आंसुओं को गले में उतार दिया। बीवियों के कुछ हकूक भी होते हैं, और उनमें अगर तुमने किसी किस्म की कोताही की तो मैं तुम्हें तब तक अजियत देता रहूंगा जब तक मुझे खुद को तकलीफ होती रहेगी। उसका लहजा किसी भी किस्म की नरमी से पाक था, जबकि सानिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ने लगी। ये सब तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। उसके बंधे हुए बालों को उसने खोल दिया और उनको हाथों में लेकर उनकी नरमाहट महसूस करने लगा, जबकि सानिया ने अपने आंसुओं को खामोशी से बहने दिया। ये बात उसने मान ली थी कि वो ताकतवर था और वो कमज़ोर थी और उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। उनका वलीमा धूमधाम से हो गया था। कितने लोगों ने इसे रश्क की निगाहों से देखा था और कितनों ने हसद भी किया था। कोने में खड़ी नायमा ने बहुत गुस्से से इन लोगों को देखा था। तुम्हें तो यकीन था कि मुकर्रम हुसैन शाह तुमसे ही शादी करेगा, नायमा, तो अब क्या हुआ? किसी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी तो वो चौंकी। ये उसकी दोस्त थी, और कभी कभी दोस्त भी दिल जलाने वाली बातें कर देते हैं। उस लड़की के साथ शादी इसकी मजबूरी थी, और मैं उसकी मजबूरियों को अच्छी तरह समझती हूँ। नायमा ने अपने कर्ब को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया था, सो मुस्कुरा कर कहा, कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि कोई इंसान शादी ही कर ले। गजाला ने उसे देखते हुए सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास उठा लिया। उसको सियासत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए था, और वो सारा पैसा उसके ताया अब्बा के पास था, सो उसे ये कदम उठाना पड़ा। उसने बाल कानों के पीछे करते हुए बहुत एतमाद से इसे बताया। ओह, तो उसने होंठ सिकेड़ कर कंधे उचका लिए। वलीमे के बाद वो घर आ गए थे। बाबा भी आए हुए थे, सो वो उनके साथ थोड़ी देर बैठी और उनको यकीन दिलाया कि वो खुश है। एक तो मुकर्रम ने इस बात की हिदायत की थी, और दूसरा वो खुद भी नहीं चाहती थी कि बाबा को किसी किस्म का उसकी तरफ से दुख मिले, क्योंकि अब वो वाकई तन्हा हो गए थे। और मुकर्रम की हिदायत पर वो थोड़ी देर बैठने के बाद थकन का बहाना करते हुए वहाँ से कमरे में चली गई। वो कमरे में गई तो मुकर्रम किसी से कॉल पर बात कर रहा था। ठीक है, मैं 2-3 घंटों तक तुम्हारे पास आता हूँ। वो चेंज करने चली गई तो वो फ़ोन पर बात करता रहा। जब वापस आई तो उसने ये महसूस किया था कि किसी लड़की की ही आवाज़ थी। जिस तरह का ये सियासतदान है और जिस तरह की इसकी रेपुटेशन है, तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इसके ताल्लुकात होंगे। उसने बस दुख से सोचा, अगर तुम मसला कश्मीर हल कर चुकी हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, फिर मुझे कहीं जाना है। उसका तन से भरा हुआ जुमला पुश्त पर उभरा तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठी और बेड पर आन बैठी। थक गई हो? उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए इस्तफसार किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया।
जिस पर मुकर्रम ने उसका बाजू जकड़ा और उसे मरोड़ा। ये क्या कर रहे हो तुम? वो दर्द से कराहते हुए बोली। तुम नहीं, आप कहो, तुम्हारा शौहर, वो तहकुम भरे लहजे में कह रहा था, जबकि वो अजियत से दोहरी हो रही थी क्योंकि वो कलाई को मुसलसल मरोड़ रहा था। मैंने कहा कि वही सवाल करो मगर आपका इस्तेमाल करो। मुकर्रम की आंखों में खून उतरा हुआ था। ये वो शख्स हरगिज नहीं था जो आज उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था, बल्कि शायद उसने कैमरे की आंख का ख्याल रखते हुए इस पर एक नज़र करम की थी। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें, अजियत से कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जबकि मुकर्रम के लबों पर मुस्कान बिखर गई। मेरा पहला सवाल तुमने नज़रअंदाज किया, ये उसकी सज़ा मिली है। आइंदा मैं कुछ भी कहूँ तो तुम उसको नज़रअंदाज नहीं करोगी, चाहे तुम्हारी नज़र में वो कितना ही गैर अहम सवाल क्यों ना हो। उसने सानिया की आंसुओं से भरी आंखों में देखते हुए एक नया हुक्म जारी कर दिया था, तो दर्द से बिलबिलाते हुए उसने सर को असबात में हिलाया कि तुम्हारी इस बात का आइंदा ख्याल रखूंगी। मैंने अभी तो तुम्हें समझाया है कि तुम जवाब दोगी, मुंह से बोलोगी तो अभी कहो कि ठीक है, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी, और ये बात पूरे 50 बार कहो। वो इसे देखते हुए कह रहा था, जबकि सानिया ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन उसने जिस अंदाज में इसे देखा तो वो कहने लगी, ठीक है, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी, ठीक है, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी। वो रटे रटाए तोते की तरह कह रही थी, जबकि मुकर्रम सिगरेट सुलगाए ऊंचे ऊंचे कह कहे लगा रहा था। वो कमरे में तो कुछ और सोच कर आया था, मगर यहाँ आकर उसे ये चीज़ ज़्यादा लुत्फ दे रही थी। उसका डरा हुआ चेहरा इसे सुकून देता था। तुम्हें तो खबर भी नहीं है मिसेस मुकर्रम शाह कि तुम मेरे किस बदले की भेंट चढ़ गई हो। वो तलखी से मुस्कुराया और उसका मोबाइल बजा। हाँ हनी, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे पास आ रहा हूँ, फिक्र मत करो, उसने मुस्कुराकर कहा और कॉल काट दी। और वो मुसलसल यही जुमला बड़बड़ा रही थी। फिलहाल मेरी एक अदर गर्लफ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रही है, मगर तुम्हारी सज़ा ख़त्म नहीं हुई। तुम सारी रात इस सोफे पर बैठकर गुजारोगी। उसके नए इन हुक्म पर उसने दुख से देखा। मुझे बेशक इन निगाहों से मत देखो, मुझे तरस नहीं आता। उसका बाजू पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा दिया। मौसम ठंडा हो रहा था और उसके पास कोई कंबल वगैरह भी नहीं था। तुम सारी रात यहाँ पर ही गुजारोगी, मैं किसी भी वक्त आ सकता हूँ, और अगर मैंने तुम्हें बेड पर देखा तो याद रखना मैं रहम नहीं खाता, और ये तुम जान चुकी हो। वो इतना कहकर वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद वो पत्थर की हो गई। उसने सोचा था कि वो इस शख्स को नाकों चने चबवा देगी, मगर पता नहीं क्यों वो उसके आगे हार गई थी। वो रोना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों आंखों से आंसू ने गिरने से इनकार कर दिया था। इंसान जब खुद हिम्मत हार जाता है तो कोई दूसरा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। 1 महीना गुजर गया था और उसकी जिंदगी मुश्किलात का मरकज बनी हुई थी। मुकर्रम का रवैया उसके साथ पहले से भी ज्यादा खराब हो गया था। उसका दिल करता था तो इसे बुलाता था, मगर अंदाज ऐसा होता था कि वे जैसे कोई इसकी जर खरीद गुलाम हो। आज भी उसने बाकायदा इसे मारा था, और वजह एक जरा सी थी। हमें कहीं पर जाना है, तैयार हो जाओ, कमरे में आते ही तेजी से बोला। क्या पहनूं? उसने सवालिया नजरों से देखा, क्योंकि वो उसके बताए गए लिबास ही पहन सकती थी, बल्कि यहाँ खाना भी उसकी मर्जी का ही खा सकती थी। लेकिन उसने सुना नहीं था और वो चला गया था। वो काफ़ी देर तजब्जुब का शिकार रही, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि क्या पहने, तो उसके इंतज़ार में बैठी रही। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि कौन सा ड्रेस पहनूं, उसके लिए उसने साफ गोई से बताया, लेकिन मुकर्रम हुसैन शाह का पारा चढ़ चुका था। उसने मोबाइल की तरफ देखा तो पार्टी शुरू हो चुकी थी।
वो आगे बढ़ा और एक थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। दुख से उसे देख रही थी, क्योंकि उस दिन के बाद से उसने कोशिश की थी कि वो किसी न किसी तरह उसकी मार से बच जाए, कि उसके बाप ने तो उसे कभी फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था। दफा हो जाओ, जहन्नुम में जाओ, मैं अपने साथ किसी गर्लफ्रेंड को ले जाऊंगा, और मुझे लगता है कि मुझे किसी गर्लफ्रेंड से ही शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम वो इस सोसाइटी में मेरे साथ मूव करने के काबिल तो है। गुस्से से धाड़ते हुए वो उसकी बोलती बंद कर चुका था, जबकि वो इस लम्हे कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं रही थी। हेलो नाइमा हनी, तुम तैयार हो तो 10 मिनट इंतज़ार करो, मैं तुम्हें पिक कर रहा हूँ। हमें वाजिद की तरफ पार्टी में जाना है, उसने कहकर कॉल काट दी और फिर इसकी तरफ देखा जिसका चेहरा अजियत से सुर्ख हो रहा था। तुम मेरे साथ किसी पार्टी में जाने के काबिल ही नहीं हो, मैं ही गलत था जिसने ये सोच लिया, वो कहकर एक नफरत भरी निगाह उस पर डालकर वहां से चला गया। उसकी आंखों से अभी तक आंसू जारी थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इसकी नफरत की वजह कैसे जाने और अपने इस टूटी बिखरी जिंदगी को कैसे समेटे। उसकी सास ने मुलाजमा के हाथ उसे अपने कमरे में बुलाया तो वो उनके पास चली गई। तुम्हारे साथ हमारा इतना वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। उन्होंने थोड़ी तकल्लुफ़न बातें करने के बाद ये कहा तो इसके चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट आ गई। बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मुकरम का तुम्हारे साथ रवैया अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उसकी हर बात को बर्दाश्त करो, क्योंकि जुल्म सहने वाला भी जालिम होता है। उनकी इस बात पर इसने दुख से उन्हें देखा। मैं कुछ नहीं कह सकती, वो मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि एक बार मैंने बोलने की जसारत की थी तो उन्होंने मेरी वो हालत की थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी आवाज़ में इतना दुख था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मुकरम जो माँ के कमरे की तरफ आ रहा था, क्योंकि वो उसे अपने कमरे में नहीं मिली थी, इसीलिए वो उनके कमरे की तरफ आया तो ये सुनकर वो रुक गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसको लगा कि तुमने मुझे बताया है, और उसने मुझे सख्ती से ये कह दिया कि मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से दूर रहूं। बेटा, वो बहुत एग्रेसिव है, मगर वो दिल का अच्छा है। उनके अच्छे दिल का मैं क्या करूं, जिन्होंने मेरा दिल मार दिया है। उसने इस कदर अजियत से कहा कि मुकरम का दिल तेजी से धड़का। वो फौरन वहां से हट गया और अपने कमरे की तरफ आया। मैं तुम्हें बस इतना कहूंगी बेटा कि प्यार की ज़बान में वो फौरन आ जाएगा। ये सच है कि उसको ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारनी है। बेशक वो कहता फिरे कि उसकी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, मगर उसकी बीवी तुम हो, और अहमियत सिर्फ बीवी की होती है। तुम्हें उसका दिल जीतने के लिए उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, और तुम्हें मजबूरन ही सही मगर उससे मोहब्बत करनी होगी। बेटा, मुकरम हमेशा से ऐसा नहीं था। वो तुम्हारे बाबा से बहुत अटैच था, और उनके बगैर वो खाना भी नहीं खाता था। फिर उनकी ज़िंदगी में तुम आ गई। तुम शायद 5 साल की थी जब वो तुम्हें अपने घर लाए थे, क्योंकि उनकी अपनी बीवी का भी इंतकाल हो गया था और वो तन्हा हो गए थे। तो तुम्हारा उनकी ज़िंदगी में आना मुकरम बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसे तुमसे तब से चिढ़ हो गई थी। उनकी बात को वो बगौर सुन रही थी। जब इस बात को सुनकर वो चौंकी। क्या मतलब? मेरा उनकी जिंदगी में आना? बाबा मुझे कहाँ से लाए थे? वो जिस तरह चौंक कर पूछ रही थी तो साफ लग रहा था कि उसे हकीकत मालूम नहीं है। बेटा, कुछ नहीं। वो डर गई और हकीकत छुपाने की कोशिश की। प्लीज चच्ची जान, मुझे बताएं, वो तड़प कर कह रही थी। मैं वादा करती हूं कि मैं मुकरम को कभी नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे ऐसा कुछ बताया है। इसने उनको यकीन दिलाने की कोशिश की। बेटा, तुम शफीक भाई की सगी बेटी नहीं हो, बल्कि उनके दोस्त की बेटी हो। तुम्हारे वालिदैन का एक कार हादसे में इंतकाल हो गया था, तो शफीक भाई तुम्हें अपने घर ले आए थे।
हकीकत जानकर वो मुकम्मल तौर पर टूट गई थी और अब एहसास हुआ था कि बाबा को वो क्यों ब्लैकमेल कर रहा था। वो चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। बेटा, उन्होंने तुम्हें बाप से बढ़कर मोहब्बत दी है। तुम वादा करो तुम उनको ये बात कभी नहीं बताओगी, वरना वो ये सब सह नहीं पाएंगे। तुम्हारी खातिर उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की कि कोई सौतेली माँ तुम्हारे साथ बुरा सलूक ना करे, बल्कि तुम्हारे लिए वो माँ और बाप बन गए। ये सुनकर उसका रोना तो मजीद बढ़ गया था, मगर बाप का मुकाम भी दिल में बहुत बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद हकीकत को कबूल करने के बाद वो अपने कमरे में आई तो मुकर्रम सो रहा था और इसे काफ़ी हैरानी हुई। कंधे उचकाते हुए हैरान कुन तौर पर उसने बेड पर बैठते हुए उसे देखा। थोड़ी देर पहले हुए इंकशाफ को अब वो भूल जाना चाहती थी, क्योंकि जिंदगी पहले ही बहुत तकलीफ़ों से गुजर रही थी। मुकर्रम की नफ़रत की वजह भी समझ में आ गई थी। तबीयत तो ठीक है, उसने खुद कलामी की और उसके माथे पर अपना हाथ रखा। उसका लम्स पाकर वो अंदर तक कांप गया था। आज से पहले उसने कभी सानिया के लम्स में इतनी नरमी नहीं देखी थी। पहले ही उसका जुमला उसे एकदम अंदर तक काट रहा था। मुकर्रम ने आंखें खोल दी तो वो डर गई, क्योंकि उसने डरा कर ही तो रखा हुआ था। हाथ को यहाँ पर ही रखो। अब की बार तहकुम भरा लहजा ज़रूर था, लेकिन सख्ती नहीं थी। वो आपकी तबीयत ठीक है? उसने सवालिया नज़रों से इसे देखा। ऐसा नहीं था कि उसके किए सितम भूल गई थी, लेकिन उस वक्त इसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि पल भर में अपना आप भूल गई। मुकर्रम ने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। क्या हुआ? वो बहुत नरमी से पूछ रही थी। सर में दर्द हो रहा है, ये कहकर उसने सर उसकी गोद में रख दिया और वो हौले हौले उसका सर दबाने लगी। पता नहीं कब ऐसा हुआ कि मुकर्रम ने उसका हाथ थाम कर अपने लबों पर लगा लिया और वो बेयकीनी से उसे देखती रही कि उसने वही हाथ अब सीने पर रख लिया था। उसे यकीन नहीं आया था। मैं आपके लिए चाय बना लूं? नहीं, मुझे यूं ही सुकून मिल रहा है, वो महमूर आवाज में बोला तो खामोशी से बस उसे देखती रही। अगली सुबह जब उसे रात वाली हरकत का ख्याल आया तो खुद पर गुस्सा भी बहुत आया कि वो क्या सोचती होगी कि इतना कमज़ोर है। वो नाइमा के पास चला गया था। नाइमा के साथ उसके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि नाइमा उसकी यूनिवर्सिटी फेलोज़ में से एक थी, जिसके साथ उसने सोचा था कि वो ज़िंदगी शुरू करेगा। मगर इस दौरान उसे सानिया अच्छी लग गई। लेकिन जब उसने धुतकारा तो इसे सब कुछ याद आ गया कि कैसे उसने पहले तायाबा को इससे छीना और फिर अपनी मोहब्बत से भी महरूम रख रही थी। तो उसने तायाबा को धमकी दी कि वो उसे सच बता देगा कि वो आपकी बेटी नहीं है। तो उसी डर से उन्होंने इस शादी के लिए हामी भर ली थी। वो गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि शादी की शुरुआत तो उसने बदला लेने के लिए की थी, मगर दिल पता नहीं कैसे बदल गया था। अलबत्ता उसने नाइमा से यही कहा था कि उसको पैसे चाहिए और चच्चा की जायदाद पर कब्जा करने के लिए वो ये सब कर रहा है। शायद अपने मन पसंद मंजर को पाकर ज्यादा अरसे के लिए दिल सख्ती बरकरार रही न पाया। नाइमा के पास गया तो बेसुकूनी कम होने के बजाय बढ़ गई थी। तुम मुझसे शादी कब करोगे? नाइमा के सवाल पर वो चौंका। मेरी शादी तो हो चुकी है नाइमा, वो बेसाख्ता बोला तो नाइमा बुरी तरह से चौंक गई। लेकिन वो शादी एक डील थी, पैसों के लिए की थी। उसने जैसे इसे याद दिलाने की कोशिश की। नहीं, तुमसे झूठ कहा था मैंने। वो शादी डील नहीं थी, बल्कि दिल से की थी। उसे शादी करने के बाद मुझे दिल का सुकून मिल गया है नाइमा। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी कि वो अजीब दीवाना सा हुआ कह रहा था। मगर तुमने कहा था कि तुमने जायदाद। मैंने झूठ कहा था। मेरे चच्चा का तो एक मामूली सा घर है और उसके अलावा उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। हाँ, मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं उसे अजियत देने के लिए तुमसे शादी करूंगा। लेकिन नाइमा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता।
मैं उसे मजीद अजियत नहीं दे सकता। वो ये कहकर भागता हुआ अपने घर की तरफ चला गया और नाइमा पीछे हैरानी से उसे देखती रह गई। सानिया, सानिया कहाँ हो तुम? जब वो कमरे में नजर न आई तो वो भागता हुआ बाहर आया। वो तो चली गई है बेटा, उसके बाबा। मामा की आवाज़ पर उसने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है मामा? आपने उसे बताया नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मामा, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे डर है कि वो ताया अब्बा को बता देगी और वो उसे मुझसे छीन लेंगे। मामा, मैं उससे मोहब्बत। वो रोते हुए एतराफ़ कर रहा था कि पता नहीं कैसे उसके खोने के डर से एकदम से वो इतना कमज़ोर हो गया था। ये मोहब्बत ऐसी ही होती है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी तो वो अपने बाबा के साथ आ रही थी। कहाँ गई थी तुम? वो दीवाना वार कहता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। मैं यहाँ बाहर वॉक करने गई थी। क्या हुआ है? तायाबा, आई एम सॉरी। मुझे आपको सच बताना चाहिए था और उसके बाद शादी करनी चाहिए थी। मैंने आप दोनों को तकलीफ़ दी, लेकिन आप यकीन करें मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो उनको देखते हुए कह रहा था। मुझे यकीन था बेटा कि ऐसा ही है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया। मुझे इस चीज़ की खुशी है। वो मुस्कुराकर कह रहे थे, जबकि थोड़ी देर बाद वो कमरे में आई तो हैरानी से इसे देखा। क्या हुआ? सानिया हैरानी से बोली। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझे हर उस गलती के लिए माफ़ कर दो प्लीज़। वो शर्मिंदगी से हाथ जोड़े उसके सामने खड़ा था। कोई बात नहीं। मोहब्बत, मुझे मोहब्बत हो गई है, दोबारा तुमसे ही। उसके माथे पर लब रख दिए। मुझे भी मुकर्रम। तभी सब सह लिया और सोचती थी कि कैसे आपको यकीन दिलाऊं। अल्लाह ने सुन ली। वो दोनों एक दूसरे के सर के साथ सर टिकाकर बैठ गए। मोहब्बत ने मुस्कुराकर उनको देखा। वक्त पर अगर एहसास हो जाए तो ही वो किसी काम का है, वरना हर चीज़ बेकार है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।